मुझे तो नहीं समझ को ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਨਾ। ਸਰ ਹੈ ਨੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਲਵਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਸਰ ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ये रक्षा चिंग चलाए, सवारियां बिठाए उतारे, फिर इसको समझ आनी शुरू वो तो हो गई। बोलते ही नहीं है। वो रक्षा चलाएंगे तो सवारी कहाँ से बिठाएंगे? नहीं वो बिठा लेगा, सवारी बिठा लेगा, वो उसकी मजबूरी बनेगी, पेट की खातर करना पड़ेगा। की कारकर्दगी ज़ीरो है। अभी आज की बारिशें तो हैं, आप देख लें, सारा लाहौर डूबा हुआ था। फान बट सुल्तानी, दूध का दूध, पानी का पानी, जी ये शाह नूरानी। इस हुकूमत से बिल्कुल हम मुतमिन नहीं हैं। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब का। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फाइज शफ्ताई बागी टीवी के साथ आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो कि पीटीआई की हुकूमत जो कि पंजाब में है उसको 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज लोगों से, आम लोगों से, ताजरों से हम जाकर पूछेंगे कि पंजाब हुकूमत जो कि उस्मान बुज़दार साहब जिसकी क़यादत कर रहे हैं, लोगों से पूछेंगे कि वो उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी से कितना मुतमिन है। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ एक भाई मौजूद है। ईद से पहले जो स्पॉट लॉकडाउन हुआ था, इस हवाले से ये गोलियाँ चला रहे थे, पत्थर मार रहे थे और बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनका गुस्सा था। लेकिन अच्छा किया क्योंकि रियासत होती है, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। हमें खुशी भी है इस बात की। आज बुज़दार हुकूमत के हवाले से इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि बुज़दार हुकूमत क्योंकि 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, क्या मुतमिन है कि नहीं है? जी भाईजान, क्या कहते हैं? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। आप हमारे पास आते हैं, आप हमारे मसाइल सुनते हैं और आगे उनको जाकर बताते हैं, इस वजह से फिर वो हमारी सुन लेते हैं। बात ये है कि हमें तो ये समझ नहीं लगती बुज़दार साहब हैं क्या। मुझे तो नहीं समझ को वज़ीर पंजाब है ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਨਾ। ਸਰ ਹੈ ਨੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਲਵਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਸਰ ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕੌਣ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣ। ਉਹ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿਧਰੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਕਮੋਰੀਆ ਪੁਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਵਾਏਗਾ ਤੇ ਬਣੇਗਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਟ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿਧਰੇ? ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ, ਪਿਛਲੀ ਹੁਕੂਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੋ ਹਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਬਾਸ਼। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਫਰੀਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਸ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਗੁੰਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਮੀ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਚੱਲ ਓਏ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਫੌਰੀ ਫੂਡ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਫੂਡ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਐਡੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਮਾਲਟਨ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਨਾ, ਅਫਸਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਬੰਦਾ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੋਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਫਸਰ ਡਰਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਆਓ ਮਸਜਿਦ ਦਿਖਾਏ ਆਵਾਂ, ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘੋ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਇਹ ਕਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈਗਾ, ਸਮਝਿਓ ਨਾ, ਕਿ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਐ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਖੋਲੋ, ਮਦਰਸੇ ਖੋਲੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਟੀਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ये इसकी हुकूमत अच्छी है ही नहीं, ना इमरान की ना गुलजार की। इसकी गुलजार नहीं, बुज़दार। गुलजार की हुकूमत अच्छी नहीं है। अच्छा, हाँ, इनको तो छोड़ देना चाहिए और कहीं दूर निकल जाना चाहिए। इनको छोड़ देना चाहिए या ये हमारी जान छोड़ दे, क्या कहना चाह रहे नहीं, हैं? इनको छोड़ देना चाहिए। अच्छा, हाँ, या ये अपने अपने शहर वापस चले जाएं। कहाँ पर?
जहाँ पे ये रहता है। क्यों मुतमईन नहीं आप ये बताइए? यार ये इससे काम नहीं हो रहा, हुकूमतें चलने में बहुत टाइम लगता है, अच्छा इसको हुकूमत नहीं चलानी आती अभी। अच्छा, ये रक्षा चिंग चलाए, सवारियाँ बिठाए उतारे, फिर इसको समझ आनी तो शुरू वो तो हो बोलते ही जाएगी। नहीं है, वो रिक्शा चलाएंगे तो सवारी कहाँ से बिठाएंगे? नहीं वो बिठा लेगा, सवारी बिठा लेगा, वो उसकी मजबूरी बनेगी, पेट की खातर करना पड़ेगा। अच्छा तो जितनी महंगाई इन लोगों ने कर दी है ना, इनको तो खुद ही चाहिए कि इस्तीफा दे के घर चले जाना। हाँ जी, वो ये है कि अभी इसको ना सियासत पढ़नी चाहिए थोड़ी सी। अच्छा हाँ भी ये सियासत से ना वाकिफ़ है, इसको सियासत पढ़नी चाहिए। और पीटीआई वाले है ही निकम्मे हैं सारे। अच्छा हाँ जी, ये सब नून लीग वाले अच्छे हैं। वोट डालना है तो नून लीग को पाना। शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर-ए-आला इधर नहीं है। ये मुसलमानों का ये काम है, ये सेवा है कि देना, लाइसेंस देना शराब का। लेकिन नून लीग के दौर में भी और नहीं, उस नून दौर में लीग भी को हुए हैं। ऐसे अफवाहें नहीं नहीं, रहती कैसे हैं। हुए वो बकायदा, ये ऐसे कैसे हो सकता है? मैं इस चीज़ को नहीं मानने को तैयार। अगर प्रूफ भी हो जाए फिर भी नहीं मानेंगे? नहीं, फिर भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वोट उसी को डालना है। शेर अच्छा, शेर चाहे वो है, सही करे चाहे गलत वो करे। शेर है। ये दो साल हो गए, दो साल हो गए तो मुरिया पुल वैसे का वैसे ही पड़ा। गुलजार को नजर नहीं आ रहा गुलजार को? मैं शराब के मुतालिक पूछ रहा हूँ कि नून लीग के दौर में भी और पीपी के दौर में भी लाइसेंस दिए गए शराब वो के, पीपी के दौर में दिए गए होंगे। नून लीग के दौर में नहीं गए? नून लीग के दौर में वो नवाज शरीफ ने आप ऐसा नहीं काम मानेंगे? करा। मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ। ताजर जो है ना वो बिल्कुल मुतमईन नहीं है। जब से ये गवर्नमेंट आई है, इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जिससे ताजर मुतमईन हो। अब ये लॉकडाउन के हवाले से भी आप देखें, हमारी तजावीज़ को इन्होंने बिल्कुल रद्दी की टोकरी में फेंका है। जो काम के दिनों थे उन दिनों में इन्होंने लॉकडाउन कभी अचानक कर दिया। ये अजीब अजीब पॉलिसियाँ थी माशी तौर पे। अब जितना लॉकडाउन किया, जितना ताजरों ने इनके साथ भरपूर साथ दिया है, अब ताजरों के लिए अब जो मसाइल हैं उनको कौन हल करेगा? अब ये बताएं, क्या इन्होंने लोन दिया छोटे ताजरों को या मिडिल क्लास को? हर बंदा डिस्टर्ब है, कारोबार नहीं है। आप हालात देख लें कि कारकर्दगी ज़ीरो है। अभी आज की बारिशें तो हैं, आप देख लें, सारा लाहौर डूबा हुआ था। अगर हम कराची की मिसाल देते हैं तो लाहौर हमारे पास है, हम लाहौर में मौजूद हैं, हमें नज़र आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है। पिछली हुकूमतों में भी ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। कारकर्दगी होती थी, वहाँ कोताहियाँ थी बिल्कुल। रियासत मदीना में अभी ये देखें 2-4 दिन पहले यहाँ हमारे अंदरून शहर में मस्जिद वज़ीर खां में जो कुछ हुआ है, ये रियासत मदीना में ये काम है। जहाँ इमाम साहब, जहाँ खतीब साहब बैठ के बयान करते हैं, वहाँ ये लोग बैठ के वहाँ शूटिंग कर रहे हैं। क्या किसने इजाज़त दी है? गुलजार साहब अब कहाँ हैं? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? ये मसाजिद में यानी कि एक्शन लेना चाहिए था। क्यों नहीं लेना चाहिए था? किसने इजाज़त दी है? ये जिम्मेदार हैं, इनको नहीं पता। और क्या हो रहा है ये शराब के हवाले में? अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये सिर्फ रियासत मदीना का नाम ही है और काम इनके बिल्कुल वो नहीं है जो कहते हैं। हमारी पंजाब हुकूमत की जो पॉलिसी है ना, वो किसी की समझ में नहीं आ रही कि ये किस किस्म की पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं, किस किस्म का ये लॉकडाउन करते हैं जो अचानक ही हो जाता है। अचानक लॉकडाउन कर देते हैं और महंगाई की तरफ से भी कोई हालात नहीं है। तो ये जो है ना, ये मामला पंजाब हुकूमत की समझ में नहीं आ रहे किस तरह हुकूमत को चलाना है। आवाम को क्या रिलीफ दी है, आवाम को कितने % रिलीफ हुआ है? आपने आवाम के इंटरव्यू लिए होंगे, आवाम कितना खुश है उनसे? अक्सरियत राय उनके बारे में क्या कह रही है? अक्सरियत राय तो यही कह रही है कि उनसे हुकूमत नहीं चल रही, आवाम उनसे खुश नहीं है, गरीब आदमी उनसे खुश नहीं है, ताजर उनसे खुश नहीं है। ताजर जितना पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ है इन लॉकडाउन के हालात में या दूसरे हालातों में, मेरा ख़्याल है किसी भी हुकूमत के इतना ख़िलाफ़ नहीं हुआ था। कि हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के मुल्क में हम रह रहे हैं, हमने इस्लाम के नाम पे इस मुल्क को आज़ाद करवाया था। और इस्लाम के नाम पे इस मुल्क को आज़ाद कराने के बाद ये जो हरकतें कर रहे हैं, जो माज़अल्लाह इन्होंने शराब का लाइसेंस जारी किया, ये कितनी शर्मनाक बात है, आप खुद ही महसूस करते हैं। अच्छा, ये तो लेकिन पिछली हुकूमतों में होता रहा है। नहीं, पिछली हुकूमतों में एक छुप के होता था काम। देखिए, उलमा कराम को पता नहीं होता था कि ये निजी लेवल पे क्या हो रहा है, लेकिन अब ये जो काम कर रहे हैं ना, ये बच्चे को पता चल रहा है। एक मुसलमान की कंट्री में मुसलमान होते हुए, ये ख़ुद भी मुसलमान है, तो ख़ुद मुसलमान होते हुए उन्होंने ये कैसा काम किया है, इनको शर्म आनी चाहिए। जी, मैं मोहम्मद इरफान भट्ट, सुल्तानी, दूध का दूध पानी का पानी, जी शाह नूरानी, ये मेरा लक़ब है। साथ में ये जो आपने बात की है उस्मान बुज़दार साहब की, इस हुकूमत से बिल्कुल हम मुतमिन नहीं हैं। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब का, ख़ास तौर पे जो हमारे ताजर भाई हैं उनका बेड़ा गर्क किया है। ये तो समझ नहीं लगती, 2 दिन पहले कहते हैं लॉकडाउन नहीं होगा और अचानक लॉकडाउन होता है, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हुकूमत को और मज़दूरों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। लेकिन देखें, लॉकडाउन वाली कहानी तो तकरीबन अब ख़त्म हो चुकी है, तो सारे कारोबार खुल गए। बुज़दार हुकूमत हमें तो समझ ही नहीं लग रही ये कर क्या रहे हैं। ये आप लाहौर की सड़कें देख लें, बेड़ा गर्क हुआ है। ये 2 साल हुकूमत को हो गया, 2 साल में क्या किया उन्होंने?
ये जो हमारे पास एक मोरिया पुल है, इसकी उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, बेड़ा गर्क किया हुआ है, अभी तक पता ही नहीं चल रहा ये बनना भी है कि नहीं बनना। अवाम के लिए इतनी परेशानी है जिसका हिसाब नहीं। अगर उस्मान बुज़दार साहब ने शराब का लाइसेंस दिया है तो ये बहुत ज़बरदस्त ज़्यादती है। रियासत मदीना के नाम पर ये आने वाले लोग जाहिल ये बहुत ज़्यादती कर रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के साथ। और मुल्क पाकिस्तान किस नाम पे बना था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और आज ये इसी नाम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। अगर शराब का लाइसेंस दे रहे हैं, इनको खुदा का खौफ होना चाहिए। क्या इनको अपनी मौत याद नहीं है? उस्मान बुज़दार साहब को दुनिया से जाना नहीं है, इनको खुदा का खौफ करना चाहिए। नहीं तो ये जो नून लीग की हुकूमतों में ये काम हुए हैं उसके मतलब अगर नून लीग की हुकूमत ने किया, निजी लेवल पे किया है, अंदर खाते किया है, इसका हमें पता नहीं है। अगर उन्होंने भी किया है तो उनको भी खुदा का खौफ होना चाहिए था। ऐसा काम करने से परहेज़ करना चाहिए। बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। 2 साल में आप देखें, ये एक मोरिया पुल देखें, 2 साल हो गए हैं, अब तक नहीं सही हुआ, बिल्कुल नहीं निकम्मा। इतना पानी उधर खड़ा हो जाता जब बारिश। आज तक हुकूमत ने किया गया 2 साल में। मुझे ये बताएं आप, एक मोरिया पुल की वजह से एक मोरिया पुल की नहीं, पूरे पंजाब में देख लें आप, किधर कोई काम नहीं हुआ। अब ये देखिए वो पकड़ा हुआ क्या नाम है फरदौस मार्केट का, उधर भी अभी तक नहीं काम हो रहा। उधर तेज़ी से लगे, इधर बाकी हर जगह आज सुबह देखिए कितना पानी खड़ा है। पहले इतना पानी नहीं खड़ा होता था, जब इतना पानी हो। ट्रैफिक का मामला इतना ख़राब, सड़कें आज तक 2 साल में बनाए बिल्कुल निकम्मी हुकूमत। क्या पिछली हुकूमतों में नहीं ऐसा होता था? बारिश होने से होता था, पिछली हुकूमत में इतना नहीं होता था जितना ये हुकूमत कर रही है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही फिर गई है, कारोबार भी तबाह हो गया बिल्कुल ही। यानी कि आप मुतमिन नहीं है? मैं मुतमिन, किसी से मुतमिन नहीं, पीटीआई जी किसी से मुतमिन नहीं है। 2 साल हो गए इन्होंने शहर में कोई काम, कोई रोड टूटा हुआ है वो दोबारा रोड वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। हम बहुत परेशान, रिक्शा चलाता हूँ, जहाँ देखो रोड टूटा हुआ है, इन्होंने कोई पैसा नहीं लगाया इन्होंने। हम की तरफ से बहुत अफसोस। ये तो चलो सिर्फ रोड हो गया, इसके वाले से आप चलो आप मुतमिन नहीं है, लेकिन इसके अलावा बाकी आप मामला पे क्या कहते हैं पंजाब हुकूमत? नहीं, मामला में कुछ भी नहीं, उन्होंने कोई करके दिखाए तो सही है ना। वादा कर लेते हैं गरीबों को रोज़गार देंगे, मकान देंगे, दोनों में से कोई वादा पूरा नहीं करा। तो ये तो पिछली हुकूमतें भी कहती रही हैं। कहते रही, फिर भी बेहतर थी, पहले से बेहतर। उस्मान बुज़दार साहब को आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये कहेंगे पंजाब में आन के देखें, पंजाब की तरफ तो बिल्कुल आते ही नहीं है। 2 साल हो गए बिल्कुल ही पंजाब। उस्मान बुज़दार साहब तो है तो वज़ीर आला पंजाब ही ना, आप उनको कैसे कह रहे हैं यहाँ? आप उनको कोई मैसेज, क्योंकि वो है पंजाब में और कल भी वो लाहौर में थे। तो लाहौर में तो हॉल का हालत नहीं देखा, क्या हालत है उनके बने हुए। पानी बारिश हो जाती 2-3 घंटे पानी नहीं निकलता, पहले कहाँ होता था। नहीं जी, बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कई सालों में नून लीग ने हमारे इस यानी कि लाहौर के अंदर इतनी हमें सहूलत दी, जिस पुल पे हम खड़े हैं हमें ये पुल बना के दी, यानी कि पूरा यानी कि इसका रश ख़त्म कर दिया इस मीनार पाकिस्तान का सारा। तो जो है हम बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है उनकी हुकूमत से। जी, ये थे वो आम लोग और ताजर जो कि वज़ीर आला पंजाब से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब ने कुछ भी डिलीवर नहीं किया। रोड्स ख़राब हैं, आज जो लाहौर में बारिश हुई है उसका पानी अभी भी गलियों, बाज़ारों और पार्क्स में खड़ा है। लोग वज़ीर आला पंजाब से बिल्कुल खुश नहीं है। गरीब को किसी भी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला, काम कारोबार कोई नहीं है, लोगों को किसी किस्म का कोई मुआशी पैकेज नहीं दिया गया। कैमरामैन सावल बाबर के साथ फाइज सुख्ताई, बागी टीवी, लाहौर।